Perfect Woman, India's first talking magazine, and I'm all set to have my perfect woman, Aarti Deshmukh, in board. A strong personality is all set with us. She's a yoga and a meditation trainer. She is a half marathon runner, currently pursuing her passion, that is her love for Kathak. So let's meet the beautiful soul who is all set with us, Aarti Deshmukh. Hello, Aarti ji. How are you? Hello. Hi, Kushi ji. I'm fine. Thank you. So nice to see you again, hear you again. Abhi, it is a moment where I feel that like empowered woman is here to rock the stage. Can you just introduce yourself a little bit to all the listeners who are listening you? Yes, ma'am. Yes. Sure. Thank you so much for this opportunity. Uh, I'm Aarti आप अपने Deshmukh. बारे Yeah, 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 Yes. yeah, yeah. I'm Aarti Deshmukh, presently taking yoga and meditation classes. I'm a hardcore marketing person and recently participated in a beauty pageant, Vogue Star Beauty Pageant, Jaipur, and won two titles. One is City winner, and another one is Vogue Star Virtuous State winner. Wow, that's amazing. Aarti was it always in your mind that, like you, such a passionate person, you have been working in the corporate sector, banking sector, and then suddenly you deviated yourself to the world of spirituality. So, how was the transformation, and can you just put some light on it? Yes, sure, ma'am. Actually, in spirituality, I was since my very young age, around say 18, 20 age. And then side by side with spirituality, I went to the marketing and salesperson, and later on, uh, homemaker, and then now again yoga and meditation teacher. Wow, so this entire journey has been very remarkable, isn't it? बहुत ज़्यादा Right, right. आपने अपने आप को इस तरीके से ढाला that you've been balancing your life, your work, your passion, your hobby, your family. So entire wearing so many feathers at one go, how it has been? आपके लिए ये किस if I ask you how was the experience share can you just put some light and can you just share some of your experience in life? यस यस बहुत आसान भी नहीं था, काफी डिफिकल्ट हुआ था ये सब चीज में। पर बोलते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी के साथ आप अपने आप को बिल्कुल बैलेंस कर सकते हो, एंड इट इज रियली ट्रू। जब लाइफ में हर्डल्स आते हैं, डिफिकल्टीज आती है, तो मेडिटेशन और योगा आपको बहुत बहुत काम रखता है, स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रांग बनाता है। और यही चीज थी कि जब बिगिनिंग में मेरे करियर के बिगिनिंग में काफी डिफिकल्टीज थी, तभी मुझे ये स्पिरिचुअलिटी ने बहुत बैलेंस रखा, और मेरे गोल्स अचीव करने में मुझे बहुत हिम्मत मिली है ये सब चीज से। So nice, so nice. Aarti if I ask you that you have seen so many phases of life, Right. आपने हर तरीके के जो लाइफ के जो यूनिवर्सल टास्क जो इंसान हर व्यक्ति को has to go under all the tasks that has been provided by the universe. So if I ask you that what were those tasks in your life and which you thought that this were the most challenging and you learned so many things from out of it? Right. It is little personal too. When I was around 2021, and that time I've decided to do something, out of box. वो टाइम पे रॉक क्लाइंबिंग वगैरह करना थोड़ा लड़कियों के लिए मतलब मेरी फैमिली में थोड़ा दिक्कत था कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत रिस्की है, ये सब चीज नहीं करना चाहिए। तो वो टाइम पे मेरे फैमिली ने मुझे बहुत अपोज किया था, ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना है, और आप अपना करियर छोड़ के, अपना रूटीन छोड़ के ये सब चीज में जा रहे हो, बहुत रिस्क है इसमें, ये सब चीज नहीं करना। तो वो बैलेंस करने के लिए कि रॉक क्लाइंबिंग भी सीखना था, स्पिरिचुअलिटी को भी मेंटेन रखना था, और करियर भी करना था, क्योंकि करियर मतलब जॉब करना मेरे लिए मेरा ब्रेड बटन अर्न करने का एक जरिया था जो मैं छोड़ नहीं सकती थी, और मेरा पैशन भी मुझे करना था। तो वो तीनों चीजों को बैलेंस करके, और साइमल्टेनियसली फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। दो आई वाज रादर आई एम अ यंगर डॉटर इन द फैमिली, पर कुछ वक्त ऐसा था कि जब मेरे डैड बहुत जल्दी एक्सपायर हुए, तो बाद में फैमिली का काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पे था। मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी बीच में, ऐसा वो टाइम पे, तो तभी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है फैमिली की वो मेरे पे आई थी। तो वो चीज सब था ना कि सब चीजों को मेंटेन करके, खुद को काम रख के, अपने पैशन को भी
खुद को मोटिवेट करना है अपने पैशन के लिए और उसको भी परस्यू करना है, तो वो सब चीज करने के लिए मुझे बहुत सी चीजें दिक्कतें सामने आई थी। बहुत लोगों ने मतलब अपने यहाँ बोलते हैं ना पैर खींचना, तो वो ज्यादा हुआ था कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये काम छोड़ के आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, यहाँ पे नहीं जाना है, लड़कों के बीच में अकेली लड़की ने नहीं जाना है, इतनी यंग एज में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। फिर ऑफिस का कुछ माहौल ऐसा था कि आप अगर इतना छुट्टी लेके जाओगे तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो वो डिफिकल्टीज ऐसी थी कि कैसे करें, पर समहाउ जो बोलते हैं कि कोई चीज हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, तो वैसा मैं रोज सुबह जब मेडिटेशन करती थी, तब ये रोज सुबह मैं लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त पे अगर कोई चीज आप करते हो, मेडिटेशन या कोई भी साधना, तो वो ज्यादा आपको रिजल्ट देती है। तो वो चीज मैं मैनिफेस्ट करती थी कि भाई मुझे मेरे करियर में भी आगे जाना है, मुझे मेरे पैशन को, जैसे मेरे को रॉक क्लाइंबिंग और ट्रेकिंग भी करना है, और मुझे मेरा स्पिरिचुअल बैलेंस भी रखना है, और मुझे मेरी फैमिली को भी देखना है। ये सब चीज तो में ये जब आपने अपनी फैमिली को ये सब बताया, दो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल, एंड इट इज फॉर एनी वुमन who wishes to do something and there are multiple things and responsibility जो फैमिली की होती है, जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है फॉर अ वुमन, उन सब चीजों को बैलेंस करके, सो व्हेन यू थॉट ऑफ डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज एंड व्हेन यू शेयर्ड योर व्यूज विद योर फैमिली, व्हाट वाज द रिएक्शन? The first reaction was initially my father was very happy जब वो थे, तभी वो he was very happy and he was very supportive कि नहीं नहीं लड़की है तो क्या हुआ, आपको करना चाहिए, आप करो, आई एम विथ यू। बट उनका जब सडनली अनएक्सपेक्टेड डेथ हुआ, तो उसके बाद में मेरी मदर ने और बाकी फैमिली मेंबर्स ने मुझे काफी अपोज किया था कि नहीं, इतना बड़ा हादसा पहले ही हो चुका है एंड यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल मेंबर इन द फैमिली, सो यू कैन नॉट टेक रिस्क, ये लाइफ थ्रेटनिंग आप जो भी कर रहे हो वो सब चीज नहीं कर सकते हो, और आप घर के अर्निंग मेंबर हो, तो आप इतना मतलब निग्लिजेंस ठीक नहीं है सबके लिए। पर पता नहीं कन्विंस करने में मैं कामयाब हुई, और ये सब में धीरे धीरे मैंने अपने आप को आराम से इस सब में डिफिकल्टीज को हैंडल किया, पार करते गए, हैंडल किया, और डिसाइड करती गई कि प्रायोरिटीज क्या है, कब किस चीज को प्रायोरिटी देना है, कब किस चीज को जस्टिस देना है, उस हिसाब से मैं करती गई और अचीव करती गई एक एक चीज, और कामयाब भी हुई। आपको पता है मेरा रीजन ये था इस सवाल का, बिकॉज आई हैव विटनेस्ड मेनी वुमेन हु रियली वांट टू डू समथिंग, मे बी दे आर गुड एट मेनी थिंग्स and they want to achieve their goals, but you know, like at some point of time they think, they accept the fact that yes, we are only responsible for our four walls and I'm supposed to take care of my family, so they don't even feel like discussing with them कि हम कुछ करना चाहते हैं या हम कुछ बनना चाहते हैं। Women like you who are capable, and I'm not just capable to encourage and empower other women, I believe with the help of spirituality you are doing great and commendable job। सो इन सारी चीजों को वन गो आप कर रहे हो, तो आप उन औरतों के लिए क्या कहना चाहोगे जो बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन कहीं कुछ कर नहीं पाती, कहीं अपनी सोच को सच में बदलना नहीं चाहते? नहीं, उनके लिए मैं पक्का जरूर कहूंगी कि आप पहले डिसाइड करो कि आपकी जितनी भी मतलब विशेष है कि आप उसको प्रायोरिटाइज करो कि क्या करना है, और नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप अगर एक बार डिसाइड कर लेते हो ना कि आप फैमिली को भी सैक्रिफाइस नहीं करते हो, आप अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से बच्चों के प्रति, जो घर में बड़े हैं या इन-लॉज हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, उनके प्रति भी आप अच्छे से कर सकते हो अगर आप अच्छे से प्लान करते हो कि आप डिसाइड करो मुझे ये चीज करना है जहाँ पे मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो, पर मैं मेरी जितनी भी विशेष है वो फुलफिल भी करूँ। खुद के लिए टाइम देना सीखो और बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव हो, अपने जो भी अपने डिसाइड किया है माइंड में कि मुझे ये करना है, पर बाबा मुझे ये डिफिकल्टी है, मैं नहीं कर पाऊंगी, बच्चे स्कूल से आते हैं वो टाइम पे मैं घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ, घर में पेरेंट्स है उनका मुझे ख्याल रखना है तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ। बिलीव मी, एट द एज ऑफ 50 लास्ट ईयर नहीं, यही ईयर मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना है, जो कि मेरी फैमिली के लिए एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट था कि ये एज में आप अब ये करोगे, अभी मतलब अभी तो आपका घर पूरा संभालने का टाइम है और आप ये सब क्या कर रहे हो। ये तो बहुत ही चैलेंजिंग होगा। चैलेंजिंग था, और
ऐसा था ना कि जॉइंट फैमिली में रहते रहते ये सब चीज बिल्कुल नहीं कर पाओगी तुम, नहीं हो पाएगा घर में। माय मदर इन लॉ वाज अ कैंसर पेशेंट, अभी अभी ठीक हुए हैं, तो तभी तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी कि आप कैसे करोगे ये सब चीज को। तभी मैंने सबको बोला था, घर में भी और बाहर जो लोगों ने मुझे मतलब क्रिटिसाइज किया था कि नहीं कर पाओगे, उन लोगों को मैंने ये बताया था कि जस्ट बिलीव इन मी, और मुझे करने का एक मौका दो। आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो कम से कम निगेटिविटी मत दो मुझे, लेट मी हैंडल एट माई लेवल, और मैं करती हूँ बराबर। आपका कुछ मैं ये नहीं करूंगी, सैक्रिफाइस नहीं होने दूंगी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और खुशी में मैंने ये ना बहुत अच्छे तरीके से प्लान आउट किया, एक चार्ट बनाया था मैंने खुद के लिए कि अगर मैं खाना मतलब बिलीव नहीं करेंगे जो सुन रहे हैं, या आप किसी को बताओगे बाद में तो बिलीव नहीं कर पाएंगे लोग, कि शाम का टाइम रहता था, जॉइंट फैमिली का किचन का टाइम रहता था मेरा, 2.5 घंटा मैं किचन में रहती थी 6 महीने, और 2.5 घंटे में से 1.5 घंटा मैं वर्चुअल ट्रेनिंग अटेंड करती थी खाना बनाते हुए। Oh my God, now this is या something और ये मुझे जरूर unbelievable. बताना Yes, था, true, too empowered. ये जरूर बताना था कि अगर आप इच्छा रखते हो, आपको अगर सही में कुछ चीज करना है, कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए कोई बैरियर नहीं होता है। बस आपका विश, आपकी पॉजिटिविटी, और बस मन चाह चाहिए कि मुझे ये करना ही है। और वो टाइम पे सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करती थी बाकी लोगों को कि आप प्लीज मेरे आजू बाजू में कुछ आवाज शोर नहीं करेंगे, मैं अपना काम भी कर रही हूँ, साथ साथ में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर रही हूँ। और वही हुआ। यस, और ये चीज मुझे बहुत मतलब काम में आई कि दोनों चीजों को बैलेंस करते करते मैंने ये 2 टाइटल्स भी विन किए, और मैंने ये प्रूव किया कि नहीं, ये हो सकता है। एब्सोल्युटली हो सकता है। एंड इससे जो लोग सुन रहे हैं, जो उनको इतना तो रियलाइज होगा कि हाउ कैन अ वुमन, यू नो, लाइक एज वी से शी इज मल्टीटास्कर, शी इज शक्ति, एंड शी इज capable enough to do numerous activities at one go, and this is what you proved, because you know, like cooking के वक्त उस समय को कैसे यूटिलाइज करना है, जस्ट टू बैलेंस योर स्टफ, यू डिड इट सो वाइसली दैट यू बी, आप वर्चुअल भी अटेंड कर रहे हो, मतलब आप अपने ब्लूटूथ से एक्टिव भी हो, और प्लस आपके फ्री हैंड से आप अपना काम भी करती थी। और बीच बीच में मैं अपने ट्रेनर्स को, मेरे जो भी ट्रेनर्स थे उनको रिक्वेस्ट करती थी कि जब मेरा टर्न आएगा तो आप मुझे सिर्फ एक टेक्स्ट करना, तो मैं वो टाइम अपना पूरा ऑफलाइन से ऑनलाइन होके मैं डिवोशन वहां पे दूं। तो वो लोग भी मुझे बहुत कोऑपरेट करते थे, और बाकी टाइम पे मैं ऑफलाइन रह के पूरा सेशन अटेंड करती थी। Wow, so amazing. This was a universal call, you know, like universe supports when you decide to achieve something. So this was the true support for you. I believe this is for every individual who really thinks कि yes, I am capable to do anything. और मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ना मुझे सैक्रिफाइस करना है, लेकिन मुझे अपनी फैमिली, जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरा बैकबोन है, उनके साथ रह करके आई हैव टू मूव अहेड। राइट। और वही चीज, दिस वाज वंडरफुल। मुझे आपसे बात करके बहुत इंस्पिरेशन मिलता है इस चीज। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा, सिंस वी बीन टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, देयर आर many souls who really want to hear that what guideline you provide them, because it really works wonders for an individual when we think it is going to work. See, it's all about your mindset. जब लोग आपकी बात पे यकीन करते हैं तो उनको पता है कि 100% इसका रिजल्ट होना ही होना है। जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जब आप इतना स्पिरिचुअलिटी डिविएट हो अपनी लाइफ में, और आज जब आप सब चीजें, यू नो, लाइक एज वी से that ask and we shall receive, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आज भी सोचते हैं और कहते हैं, मुझे इनफैक्ट मेल्स भी आते हैं, क्या सच में ऐसा होता है? तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? होता है, पक्का। सबको मैं यही बताऊंगी कि यस, होता है। उसके लिए आपको पहले खुद को तैयार करना है कि मुझे जो भी टाइम मिले। लास्ट टाइम भी अपनी बात हुई थी खुशी जी की, कुछ लोग सुबह नहीं कर पाते हैं स्पिरिचुअल चीजें, या मेडिटेशन, योगा, साधना, ये जो चीज है, उनको टाइम की कमी होती है, एडजस्टमेंट नहीं होता है, तो वो लोग नहीं कर पाते। पर मैं बोलती हूँ, हर बंदा, हर छोटे से छोटा बच्चा और बुजुर्ग से बुजुर्ग, मतलब मेरे एक जान पहचान में मेरे स्टूडेंट है, वो शी इज 84 ईयर्स के है, और मैं कभी अगर पॉसिबल हुआ तो एक वीडियो निकाल के उनका आपको पक्का शेयर करूंगी। वो आंटी जी जो है, वो सुबह बराबर उठते हैं,
गीता का क्लास पहले करते हैं 5 to 6 इन द मॉर्निंग। 6:15 to 7:30 मेरा योगा क्लास और मेडिटेशन क्लास अटेंड करते हैं। उसके बाद उनका रूटीन शुरू होता है। अगर 84 इयर्स लेडी अगर ये सब कुछ चीज कर सकती है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस अपने प्रायोरिटी सेट करो कि, और मैं कहती हूँ आज का जो बहुत क्रिटिकल लाइफस्टाइल है, बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, उसके लिए आप अगर योगा और मेडिटेशन करते हो तो वो आपकी लाइफ का स्ट्रेस कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद के लिए दिन का 1 घंटा प्लीज निकालिए खुद के लिए। अगर आप जब हम बात करते हैं सुबह उठने की, अभी मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ये मेरे ही एक रीडर हैं जिनका मुझे मैसेज आया था। इनफैक्ट आपके और कुछ मेरे लाइव हुए थे, उसके बाद में उनका एक सवाल था मुझे कि मैम आजकल हम इंस्टाग्राम और स्पेसिफिकली हम, क्योंकि वो लाइव देख रहे थे तो उन्होंने मुझे मैसेज, आप ही के साथ बात हो रही थी तभी की बात है ये, कि मैम जब आप ये बात कर रहे हो, हम तो इंस्टाग्राम और इसमें बच्चे भी पूरा टाइम अपनी आईज को इतना स्ट्रेस कर देते हैं बिकॉज वो स्क्रॉल करते रहते हैं। आपका लाइव देख रहे थे तो 1-1 घंटा वो लोगों का लाइव देखते हैं, तो उसके बाद उनकी आंखों में इतना पेन हो जाता है कि वो जब सुबह उठना या इवन बाय when they get up at 10 o'clock also the eyes are swollen, राइट। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा है। यस। तो वो पहले सबसे पहली बात तो वही है ना कि प्रायोरिटीज क्या होती है कि आप अपने आप को बोलो कि मुझे सच्ची में इतना स्क्रीन टाइम देना जरूरी है। अगर मुझे देखना भी है, अभी कुछ लोगों को पॉसिबल ही नहीं है कि बाबा ऑफ स्क्रीन जाए क्योंकि उनका काम ही स्क्रीन पे होता है पूरा टाइम, तो उनको हम लोग नहीं बोल सकते अवॉइड करने के लिए, पर फिर भी बीच बीच में आप 2-3 सेकंड का टाइम निकालो, अपना हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करो, अपने आईज को बंद करो, हाथ को रब किया हुआ हाथ उस पर रखो, देखो आपको कितना सुकून मिलेगा आंखों को। वाओ। तो आप, क्योंकि मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा अभी क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हो, आप एक कोच हो, एक गाइडेंस आप लोगों को देते हो, तो डेफिनेटली जिस तरीके से अभी आपने बात की थी कि मैं एक वीडियो बना करके भेजूंगी फॉर दैट लेडी हु डिड, तो आई बिलीव यू कैन इवन सेंड अ वीडियो फॉर दिस थिंग बिकॉज दिस इज द नीश टॉपिक ऑफ टुडे। एवरी इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम दिस, बी इट चाइल्ड, बी इट मिडिल एज, बिकॉज एवरीबॉडी फॉर एनी रीजन दे आर इन दिस स्क्रीन। जी। इन लोगों के लिए मैं और एक चीज बोलूंगी ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर आप कंप्लीट करिए फिर मैं बोलती हूँ। नहीं, इस वक्त आपका कहना ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच। जिन लोगों को आंखों का स्ट्रेन बहुत होता है या जिनका स्क्रीन पे काम बहुत होता है, वो ये चीज तो पक्का कर सकते हैं जो मैंने अभी बोला कि आप हाथों को रख करके रखो। दूसरा ना, अपने साथ एक कूल आई पैक आता है, कहीं पे भी कोई भी मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट के पास मिल जाता है, जेल पैड होता है, तो उसको रात को सोने के पहले एक 10 मिनट के लिए आप चिल करके फ्रीजर में रखो या फ्रिज में रखो। उसको एक 10 मिनट के लिए आप अपने आंखों को बंद करो और आई पैक लगा के आप 10 मिनट शांति से सो जाओ। कई लोग तो उसमें सो भी जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं, कुछ लोगों को उससे आराम मिलता है। दूसरा एक होम रेमेडी, मैं बहुत इजी होम रेमेडी बताऊंगी, आप कोशिश करना, ट्राई करना, बहुत यूजफुल है। जो लोगों को नींद नहीं आती है ना, ये हम लोगों को योगा के और मेडिटेशन के 3 साल के कोर्स के दौरान एक गुरुजी थे, उन्होंने सिखाया था। बहुत एज वाले, मतलब काफी उनका एज तभी 72 रहेगा, एक्सपीरियंस है, और होम रेमेडीज में और आयुर्वेदा में मास्टरी थी उनकी। तो उन्होंने बोला नॉर्मल जो हम लोग कोकोनट ऑयल घर में यूज करते हैं, बालों को लगाते हैं, या जो लोग खाने में भी कई लोग यूज करते हैं, तो कोकोनट ऑयल का 3-4 ड्रॉप्स अपने फिंगर टिप पे लेना है। और बस उसको अपने आई लैशेस और आईब्रोज के बीच में जो आंखों का लीड के ऊपर का जो स्किन होता, आईब्रोज और आई लैशेस, उसके बीच में जो अपना आंखों के ऊपर स्किन होता है, उसको रब करना 1-2 मिनट के लिए ऑयल से। आप देखो आप बहुत गहरी नींद में सो जाओगे। So nice. और इससे कोई हार्म नहीं है आपको, कुछ नहीं है। ये छोटे बच्चों को भी आप कर सकते हो। छोटे बच्चे जो रात को मोबाइल लेके बैठते हैं, आईपैड लेके बैठते हैं, कि उनको कुछ मत बोलो उनको कि भैया आप आईपैड मत देखो, आप स्क्रीन मत देखो, कुछ मत बताओ। मैं मेरी बेटी को करती हूँ ये चीज, 10 साल की है मेरी बेटी। बस सोने के पहले उसको मैंने ये रिचुअल बना लिया है
कि बेटा आपके बेली बटन में और आंखों में आपको रोज ऑयल डालना है, इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ और स्किन। तो वो खुश हो जाती है और बस 2 मिनट में वो इतनी गहरी नींद में सो जाती है। Wow, that's amazing. I तो feel this is best topic for every या parent. तो ये हाँ, पेरेंट्स के लिए तो बहुत जरूरी है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच। आप जब जब भी मेरी आपसे बात होती है मैंने एक चीज नोटिस की, कुछ अलग ही सुनने सीखने के लिए मिलता है। वैसे हैप्पी टीचर्स डे टू यू, हैप्पी बिकॉज यू टीचर्स, बीन थैंक यू। सच, यस आपको भी हैप्पी यस, यू आर टीचर्स सच है, अ क्योंकि ग्रेट हर बंदा टीचर। टीचर होता है। यस ऑफ कोर्स वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, हम यस एक यस दूसरे से यस बहुत कुछ सीखते हैं। और आपसे जो जो भी मैसेजेस लोगों के लिए पहुंचते हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, उनको किसी ना किसी रूप में वो डेफिनेटली मतलब यूज में आएंगे और उनको बेनिफिट होगा ही, बाय हेल्थ में, मेंटली। तो जी। ये सारी एक्टिविटीज जो आप करते हैं इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे थैंक यू पहले तो। सो मच खुशी जी। एंड लास्टली यू आर एन योगा एक्सपर्ट। अभी आपने बहुत सारे टिप्स तो दे दिए, लेकिन मेरे ख्याल से और एक टिप बनता है, क्योंकि आप हाँ जी। हो और बिना टिप के जाओगे तो मुझे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी नहीं अच्छा लगे। जी बोलिए। टिप, लास्ट टिप ये है ना कि योगा, जो योगा मतलब योगा, ये अभी इंग्लिश में हम लोग योगा बोलते हैं, इट इज एक्चुअली योग। योग ये ऐसा एक्सरसाइज है कि जो स्लो मोशन में होता है। इसके जो भी एक्सरसाइजेस होते हैं, जो भी आसन होते हैं, वो फास्ट नहीं किए जाते हैं, बिल्कुल आराम से किए जाते हैं। क्या होता है कि आजकल का स्ट्रेसफुल लाइफ में आप जिम करते हो, आप कोई भी वर्कआउट करते हो, तो वो फास्ट मूवमेंट्स होता है। उसमें क्या होता है, आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसमें से आपको आपके मसल और हार्ट अटैक होने के और मसल डैमेज होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो योगा में ये ये चीज बहुत नहीं ही होती है। इम्पोर्टेंट है। जी यस यस, जी आई जी। एग्री टू यू एंड आई रियली अप्रिशिएट, बिकॉज वी हैव बीन रीडिंग एवरी नाउ एंड देन दैट सो एंड सो पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हो गया या बिकॉज और बहुत यंग एज में हो हैवी रहा है। डाइट। यस यस। यस। और दूसरा क्या होता है कि योग एक्सरसाइज जो भी होती है, आप सूर्य नमस्कार ले लो या कोई भी योगासन ले लो, तो वो होता है ब्रीदिंग के साथ आप ये एक्सरसाइज करते हो। हर चीज, फॉरवर्ड बेंडिंग है, आपको ब्रीदिंग छोड़ के करना है, ऊपर उठना है, आपको ब्रीद इन करना है। तो वो आपके बराबर ब्रीदिंग के साथ एक्सरसाइज होती है, तो जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल मेंटेन रहता है। बाकी सब एक्सरसाइज में क्या होता है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सब बाकी की एक्सरसाइजेस गलत है या ये है, अपने अपनी जगह पे सब सही है, पर वो किस तरीके से करना चाहिए, कितने रिगरसली करना चाहिए, कितने घंटे के लिए करना चाहिए, इसका एक शेड्यूल बनता है। अपना बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, मैं काम से थका हारा आता हूँ घर पे या आती हूँ घर पे और इमिडिएटली नहीं नहीं मुझे वर्कआउट करना ही है, इसके लिए मैं अपना जिम बैग लेके जिम करने के लिए जाती हूँ, दैट इज रॉन्ग। आई अप्रिशिएट। तो वो उससे क्या होता है, मतलब उसमें जिम वालों की कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारे अपने को सही तरीके से सिखा रहे हैं। मेरा टाइमिंग खराब है कि मैं ये टाइम पे जा रही हूँ, तो वो टाइम मेरे बॉडी को रिस्पॉन्ड नहीं करता है प्रॉपरली, मेरा हार्ट रेट प्रॉपरली मैच नहीं होता है, तो मेरा स्ट्रेस लेवल जो होता है, दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, मेरी बॉडी कुछ अलग कर रही है, तो वो कोऑर्डिनेशन सही नहीं होने की वजह से दिक्कतें काफी आती है। तो सब मेरे जितने भी लिसनर्स हैं अभी, हम लोगों को दोनों को जो सुन रहे हैं, उनको सबको एक ही रिक्वेस्ट है, आप कोई भी एक्सरसाइज करो, आपका टाइम, आपका डाइट, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका मेंटल हेल्थ, ये सब चीज को बैलेंस रख के करो। एब्सोल्युटली, आपने बहुत ही सही कहा और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा मैसेज है हर किसी के लिए, बिकॉज जैसे अभी आपने कहा कि पीपल हैव बीन बिजी इन देयर डे टू डे लाइफ बट स्टिल दे हैव टू परफॉर्म देयर वर्कआउट्स एक्सरसाइज, और इन दैट केस दे get into the gym, be it your body is ready to respond or not, irrespectively आपकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है, बट यू आर गोइंग थ्रू दिस। बस मुझे करना है, डॉक्टर ने बोला है कि Yes. आपको 1 घंटा चलना है, आप डॉक्टर ने बोला है 1 घंटा वर्कआउट करना है, तो मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। इस चीज को डेफिनेटली हर किसी तक पहुंचाना भी एक तरीके बहुत की जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि लोगों को पता चले कि देयर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग एंड दे शुड प्रे, दे शुड थैंक, बॉडी शुड थैंक यू when you are giving them exactly what the body needs, ना कि उनको स्ट्रेस करा करके आप कुछ काम करें। जी तो जी। ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, थैंक यू सो मच, यू बीन एन एंजल फॉर परफेक्ट वुमेन, ऑलवेज गिविंग एंड गाइडिंग द राइट डायरेक्शंस।
थैंक माय यू सो प्लेजर मच फॉर खुशी जी, दिस। माय प्लेजर खुशी और जी। आप आए, आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू यू टू मैम, आपने मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया परफेक्ट वुमन में। परफेक्ट वुमन की हर एक टीम मेंबर को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। ऑल आर जी वेरी जी सपोर्टिव एंड बिल्कुल। कोऑपरेटिव, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, सी यू सून, वेरी सून। सी यू सून, टेक केयर। थैंक यू, या, थैंक यू, बाय थैंक यू, बाय, बाय बाय बाय। बाय।